صلاۃ استسقا، بارش برسانے کی جو دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے اور دعائیں رو رو کر، گڑ گڑا کر، گریہ زاری کر کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ آخر میں اللہ کی طرف سے وحی آئی اس نبی کے پاس، اللہ کے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اس نبی کے سامنے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ اگر اس طرح سے 2 سال نہیں 20 سال بھی اس طرح سے دعا کرتے رہو گے، گڑ گڑاتے رہو گے اور تمہاری آنکھوں کے آنسو اگر خشک ہو کر خون بھی نکلنے لگے پھر بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اس وقت کے نبی سے تم لوگوں سے کہو کہ آپس میں انیائے، ناحق انصاف، ظلم اور کھلے عام پاپ کرنا، گناہ کرنا اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنسوؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہاری آنسوؤں کا اللہ پرواہ نہیں کرے گا، تمہاری دعاؤں کا اللہ پرواہ نہیں کرے گا، تمہاری بھوک اور پیاس کا اللہ پرواہ نہیں کرے گا، تمہاری جان کا اللہ پرواہ نہیں کرے گا، تمہاری زندگی کا، تمہاری موت کا اللہ ہرگز پرواہ نہیں کرے گا۔ آج جو ہمارے علاقے میں، ہر علاقے میں، ہر محلہ میں، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں میں، جو بااثر لوگ ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس ڈکٹیٹرشپ ہے، جن کے پاس راجنیتی سیٹ ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے، مال و دولت ہے، پاور ہے، لیکن ایسی زبان میں تالا لگا ہوا ہے، برائی کھلے عام ہوتی ہے، ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں کہ اس برائی کے خلاف ایک لفظ بول دیں۔ کیوں؟ ہماری کرسی خراب ہو جائے گی، چلی جائے گی، آئندہ الیکشن میں ہم ہار جائیں گے، ہمارا ووٹ کم ہو جائے گا، ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا اور ہماری عزت خراب ہو جائے گی، ہمیں سرپنچ نہیں مانیں گے، ہمیں لیڈر نہیں مانیں گے، لہذا خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ کھلے عام برائی ہوتی ہے، کھلے عام ظلم ہوتا ہے، کھلے عام لوگوں کو ستایا جاتا ہے، سب کچھ جان کر بھی کھلے عام شریعت کے خلاف فیصلہ لیا جاتا ہے، کھلے عام شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کھلے عام حدیث اور قرآن کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے، ٹھکرایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ ہاں، اس لیڈر کے خلاف بول دو، اس نیتا کے خلاف بولو، اس مالدار کے خلاف بولو، اس بااثر لوگ انسان کے خلاف تم کچھ بول دو، تمہاری زبان کھینچ لے، یہاں انہیں پوری طاقت مل جاتی ہے، پورا پاور مل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سمجھنے کی بات ہے، آج اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، کیا خاک جلسہ ہو رہا ہے، بس اتنی ہی لوگ ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس سے 10 گنا اور زیادہ لوگ باہر ہیں، اور زیادہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ لوگ دکانوں میں اڈے دے رہے ہیں، چائے خانوں میں اڈا دے رہے ہیں، کہیں غلط سلط جگہ میں اڈا دے رہے ہیں۔ کیا دین کا درد ہے، کیا دین کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے،
क्या अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में है? किस मोहब्बत के सहारे अल्लाह हमारी मदद करेगा? किस मुंह लेकर तुम कहते हो कि अल्लाह तू हमारी मदद कर? क्या मुंह लेकर तुम क़यामत के दिन उठोगे? किस मुंह से कहते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हो जाए, आप सल्लम हमारी सिफारिश फरमा दे, हमारी शफाअत कर दे? मेरे भाइयों मेरे को दोस्तों, हम शफाअत की क्या लायक हैं? आप सल्लम की शफाअत पाने के क्या हम मुस्तहिक हैं? नबी की कौन सी सुन्नत हमारे अंदर पाई जाती है? बेदार है कोई सुन्नत? कौन सी सुन्नत है? कुरान डंके की चोट कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, आपकी चाल चलन में, आपकी हर अदा में मुसलमानों तुम्हारी 100% कामयाबी है। क्या नबी की कोई अदा हमारे घरों में है, हमारी कम्युनिटी में, हमारी कौम में है, हमारे समाज में है, हमारी सोसाइटी में है, हमारे अंदर है? कौन सी अदा है? कौन सी सुन्नत है? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। जो हदीस की सबसे ज्यादा दो अहम किताब है, बुखारी और मुस्लिम, उसी मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, एक लफ्ज, एक हर्फ रखने की कोई जगह नहीं है कि कोई इन दो अहादीस की किसी हदीस को गलत साबित कर दे। कि तुम में से जो कोई मुसलमान जब वो अपनी आंखों के सामने किसी बुराई को होते हुए देखे, किसी गुनाह को खुलेआम होते हुए देखे, तो उस मुसलमान को चाहिए, उसके ईमान की गैरत का तकाजा ये है, उसके ईमान की गैरत का तकाजा ये है, फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि वो उस बुराई को, उस गुनाह को हाथ से रोके, उस गुनाह करने वाले को हाथ से रोके, यानी अपनी ताकत और अपने पावर का इस्तेमाल करे। फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर वो इतना कमजोर आदमी है, कमजोर ईमान वाला है और इतना कमजोर पावर का है कि उस बुराई को हाथ से रोक नहीं सकता, उस बुराई करने वाला को, उस गुनाह करने वाला को हाथ से रोक नहीं सकता, इसलिए कि वो खुद कमजोर है। हाथ से रोकने के लिए जाएगा तो फिर उसकी बुरी गत बना देंगे, उसका बुरा हाल हो जाएगा और उसको वो वहां इतना कमजोर पड़ जाएंगे कि उसको वो मार डालेंगे। तो अगर वो कमजोर हो तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हदीस में है फबिलिसानिही, वो अपनी जुबान से कहे। वो मुसलमान अगर कमजोर है, हाथ से रोक नहीं सकता, तो अपनी जुबान से कहे कि भाइयों ये गुनाह है, ये बुराई है, इससे तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर इतनी भी ताकत नहीं है कि जुबान से कहे, तो हदीस में है कि वो दिल से उसको बुरा समझ रहा है। जैसे आज चंद 100 में 2-4 ऐसे मुसल्ली और नमाज पढ़ने वाले अच्छे इंसान हैं जो मुंह से तो बोल नहीं सकते, हाथ से तो रोक नहीं सकते, सिर्फ दिल से बुरा समझते हैं कि ये बुरा हो रहा है।
तो हदीस कह रही है वज़ालिका दुआफुल ईमान, हाथ का इस्तेमाल करने पर कादिर ना होना, जुबान का इस्तेमाल, जुबान के इस्तेमाल करने पर कादिर ना होना और सिर्फ दिल से बुरा समझना, ये ईमान का कमजोर दर्जा है। ये सबसे घटिया दर्जे का, सबसे कमजोर दर्जे का ईमान है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अब आप कहिए कि दिल से बुरा समझने वालों की क्वांटिटी, तादाद ना के बराबर है। 100 में 2-4 आदमी होंगे जो इन बुराइयों को बुरा समझते हैं, वरना तो 100 में 98%, 95% लोग जो है वो बुराई का साथ देते हैं, बुराई की करने वालों की मदद करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, उनका माली इमदाद करते हैं, उनको सराहते हैं और हर तरह से उनका ताउन और यानी उनका ताउन करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अब आप कहिए फिर हमारे ईमान का कौन सा दर्जा रहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युअज़िबुल आम्मता बिअमलिल खासती, अल्लाह पाक उमूमी अज़ाब नाजिल नहीं करता है, जलजला नाजिल नहीं करता है कि जलजला नाजिल करके शहर का शहर, गांव का गांव बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दे, या कोई तूफान ले आए और वो तूफान से अल्लाह पाक मुल्क का मुल्क, शहर का शहर, इलाके का इलाका इस तरह से तबाह और बर्बाद कर दे। अल्लाह पाक कहता है कि ये उमूमी अजाब अल्लाह नहीं लाता है। बाद लोगों की बुराई की वजह से अल्लाह पाक आम अजाब नहीं ले आता है, लेकिन जब वो बाज लोग बुराई करते हैं, कौम के थोड़े लोग, कुछ लोग बुराई करते हैं, खुलेआम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, और यानी हदीस में है हत्ता यराउल मुनकरा बैना ज़हरानैहिम, यहाँ तक के जब वो थोड़े लोग या कुछ लोग वो बुराई करते हैं और सारे लोग देखते हैं अपनी आंखों के सामने कि फुला का बेटा ये बुराई कर रहा है, फुला का बेटा ये गंदगी कर रहा है, फुला का बेटा ये फितना बर्पा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, फसाद कर रहा है, और शराब खुलेआम पीकर झगड़ा कर रहा है, और आपस में लड़ाइयां लगा रहा है। सब कुछ जानने के बावजूद मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हत्ता यराउल मुनकरा बैना ज़हरानैहिम व हुम कादिरून अला अन युनकिरूहु, और महल्ले के सारे लोग और उस इलाके के लोग, ताकतवर लोग, लीडर्स जो लोग थे और बाअसर लोग जो लोग थे, वो चाहते तो उन लोगों को उन बुराइयों से रोक सकते थे, लेकिन उन लोगों ने उनको बुराई से नहीं रोके, बुराई से नहीं रोके। जब ये बुराई से रोकना बंद हो जाएगा, बुराई से रोकना बंद हो जाएगा, बुरा कहना बंद हो जाएगा और बुराई कहने वालों का साथ दिया जाएगा, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फैदा फालू दालिका अज़्ज़बल्लाहुल आम्मत वल खासता। तो जब लोग ऐसे बुराइयों से रोकना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला आम अजाब उतारेगा और उस आम अजाब में अच्छे लोगों को भी धो डालेगा और बुरे और गंदे लोगों को भी धो देगा, सबको मलियामेट कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा, सबको मिटा देगा और उमूमी अजाब आएगा और उस अजाब के लपेट में सब आ जाएंगे। जो थोड़े अच्छे लोग हैं, जो बुरे नहीं किए थे, वो भी उस अजाब के लपेट में आ जाएंगे और जो बुरा किए थे वो भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल ऐसे दी है। कोई बात मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा हूँ, हदीस और कुरान की रोशनी में कह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, बुराई से न रोकना ये कितना खतरनाक
जुर्म है और कितना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। तुमने गौर किया है? अगर नहीं किया तो करो। आपने फरमाया कि एक जहाज है, शिप है, पानी का जहाज शिप है, और उस जहाज में 2 मंजिला है, नीचे एक मंजिला ऊपर एक मंजिला, यानी 2 तल्ला है, नीचे एक तल्ला ऊपर एक तल्ला, और पानी ऊपर तल्ले में रखा हुआ है, पीने का खाने पीने का पानी ऊपर तल्ले में ऊपर मंजिले में रखा हुआ है। नीचे वालों ने कहा कि बार बार पानी लेने के लिए हमें ऊपर को चढ़ना पड़ता है, दूसरे मंजिले में चढ़ना पड़ता है, ऐसा क्यों ना हम करें, पानी में तो ये जहाज तैर रहा है, चल रहा है, तो हम थोड़ा छेद कर देंगे, हम थोड़ा यानी इसको सुराख कर देंगे जहाज को, तो समंदर से पानी उठने लगेगा और हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो पानी आएगा तो हम उस पानी को लेकर इस्तेमाल में लगाएंगे, तो हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगर वो नीचे तल्ला के लोग अगर इस तरह से छेद करने लगे जहाज को नीचे से पानी लेने के लिए, अगर ऊपर वालों ने उन छेद करने वालों को नहीं रोका, उन छेद करने वालों को, सुराख करने वालों को, जहाज के नीचे तल्ले को सुराख करने वालों को अगर ऊपर वालों ने नहीं रोका, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, छेद हो जाने के बाद, सुराख होने के बाद जब वो पानी नीचे से जहाज के अंदर समंदर से यानी उबलने लगेगा और यानी जहाज पानी से भरेगा, पानी से भरने के बाद जहाज डूब जाएगा। जब डूब जाएगा तो ऊपर वाले भी गर्क हो जाएंगे और नीचे वाले भी गर्क होंगे, ऊपर वाले भी गर्क होंगे। ऊपर वालों के गर्क होने की वजह यह है कि ऊपर वालों ने छेद करने से नहीं रोका, सुराख करने से नहीं रोका। अगर सुराख करने से रोक देते तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो फिर आज ये अंजाम नहीं होता और ऊपर वालों को डूबकर मरने की नौबत नहीं आती। लेकिन चूंकि उन लोगों ने रोका नहीं है, इस न रोकने की वजह से नीचे वाले भी डूब गए और ऊपर वाले भी डूब गए, सभी तबाह और बर्बाद हो गए। इसी तरह से मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब बुराई खुलेआम होगी, बुराई करने वाले, गुनाह करने वाले, पाप करने वाले को अगर दूसरे लोग नहीं रोकेंगे, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये पाप और गुनाह का सिलसिला बढ़ता जाएगा, नहीं कमेगा, बढ़ता जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हर बात नसीहत से नहीं होती है, किताबों के लिखाई से हर बात अमल में नहीं आती है। बात चीजें वो हैं कि कानून पर जब अमल नहीं होगा तो पावर का इस्तेमाल किया जाए, सजा दी जाए। अगर सजा दी जाएगी, पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, जब जाकर वो बुराई खत्म हो सकती है, बंद हो सकती है, वरना तो बुराई के दरवाजे बंद नहीं होंगे। आज हमारे मुल्क का दस्तूर है, हमारे दस्तूर यानी मुल्क का दस्तूर है, मुल्क का कानून है, मुल्क का कानून हमें समझा दिया गया है। अगर हम उस कानून पर अमल नहीं करेंगे तो सरकार ने जो फौज यानी पुलिसें छोड़ रखी हैं, वो पुलिसें हमें गिरफ्तार करेगी और जेल में हमें बंद करेगी। ये जेल में बंद करना, सजा देना, गिरफ्तार करना और मारना पीटना, ये इस वजह से है कि जुर्म को कमाया जाए, जुर्म ना हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए सरकार पावर का इस्तेमाल करती है, सजा को तजवीज कर रखी है सरकार ने कि अगर कोई अगर बाशिंदा ये गलती करे, ये जुर्म करे, तो उसको ये सजा दी जाएगी, इतने साल की उसको यानी सजा दी जाएगी और उसको कैद किया जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये सिलसिला जो है शरीयत में भी यही बात है कि अगर तुम पावर इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये बुराई, ये गुनाह खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शायद हमारे मुकर्रिर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यानी बाहर के
کے مقرر ہے بنگلہ دیش سے تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا بہت جوشیلا بیان ہوگا اور بہت پر حکمت بیان ہوگا, آپ سنیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, میں اپنے تمام نوجوانوں سے